Dear students, in our integral analysis, we have seen that there are no upper or lower limits. We are dealing with integrals that are indefinite in nature because there is no starting point, neither there is any ending point. What if there is a starting and ending point? And when this happens, we have another type or the second type of integrals, which is known as definite integrals. Now, by the virtue of the indefinite integrals जो कि हम पढ़ चुके हैं, this is how the integration takes place. There is the primitive and there is the arbitrary constant. What if there is a starting point and an ending point? We have a range of the independent variable, its beginning and its end. That is the starting and the ending values. जो domain है, जो आपको पता है, domain is the set of values of the independent variable. So it has a beginning and it has an end. In our economic analysis as well, you can see there is a range of various values. For example, MPC, it has a beginning and an end. And other economic variables, they also have, values that are not undefined. They are definite within certain limits. So this is why we are studying this type of integrals. As you can see, we have, a range of values. Diagrammatically speaking, it's an integral. This by this curve we can see there is an integral, and the shaded area, actually this green, this blue area with a plus sign, and this blue area again, and this yellow area with a negative sign, all of it shows the area which is between the curve and the x-axis, and we need to integrate it, collect it. इसे जमा करने से हमारे पास टोटल एरिया कैलकुलेट हो सकता है. लेकिन यहाँ पर देर इज़ अ पॉइंट टू नोट, एंड दैट इज़ के जब ये एरिया पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट द कर्व इज़ अबव द एक्स एक्सिस, और जब ये नेगेटिव साइन के साथ नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस इज़ अबव द कर्व. इट मीन्स कि जब हम इन्हें जमा करेंगे तो नेट इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी इसका ओवरऑल आंसर होगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड यू कैन सी there is A and there is B. So we are saying that this values can start from A and it can go till B. So the x is equal to from A to B. हमने इस एरिया में रहकर, इस रेंज में रहकर हमने अपने पास जो गिवन फंक्शन है उसके एरिया को कैलकुलेट करना है. नाउ दिस इज़ नॉट इनडेफिनिट इंटीग्रल बिकॉज ऑफ दीज लिमिट्स. नाउ दिस इज़ डेफिनेट इंटीग्रल. एज द नेम सेज, डेफिनेट जो क्लियर हो, वाजे हो. There are clear boundaries, the lower and the upper boundary. This is what I have mentioned here. In all of this, you can pause the video and read it to learn even more about this thing. X is equal to A lower value and X is equal to B the upper value. इसे लिखेंगे कैसे in the form of the integral? It's very easy and intuitive. चूँकि lower limit है, उसे हम integral के लोअर पार्ट पे लिखेंगे, लोअर एंड पे, और जो अपर लिमिट है उसे हम इंटीग्रल के अपर लिमिट, अपर एंड पे लिख सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं a टूवर्ड्स b ये लिमिट लगाई है. एंड वेन एवर यू सी दीज लोअर एंड अपर लिमिट्स on any integral, you would say that this is not indefinite integral, rather it is definite integral. सो यहाँ पर ये चीज़ भी वजाहत तलब है, एंड इट इज़ वेरी मच डिज़ायर्ड कि हम इसे समझें, दैट द लोअर लिमिट इज़ लेस दैन द अपर लिमिट. सो वी शुड ऑल्सो बी क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज हम अगर इनको चेंज कर देंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट्स ऑपोजिट हो सकते हैं. ये हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में डिटेल में देखेंगे. अगर आप इसे डायग्रामेटिकली एक और वे में देखना चाहें जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एरिया हो, जिसमें नेगेटिव एरिया हम शामिल ना करें, तो ये ऐसे होगा. और अगर आप इसे लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, इट विल लुक लाइक दिस. आप देख रहे हैं लोअर लिमिट जो है a है और अपर लिमिट जो है वो b है, और इससे लेकर उस तक, दैट इज़ द लोअर लिमिट टिल द अपर लिमिट, एरिया जो है हमने नोट कर लिया. ये शेडेड एरिया जो कि उस कर्व के नीचे है एंड अबव द एक्स एक्सिस. उसके बाद इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी एक आसान सा प्रोसेस है. इसमें हमने वैसे ही हल करना है जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में करते आए हैं. ये जवाब है इंडेफिनिट इंटीग्रल को अगर हम यूज़ करते, दैट इज़ द प्रिमिटिव और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. लेकिन साथ हमने एक साइड पे ब्रैकेट लगानी है और उसके ऊपर हमने ये करना है कि लोअर अपर लिमिट को रिटेन करना है, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया. सो दे शुड बी देयर. ये आपने देखा, हमने सिर्फ लेफ़्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाई
और लोअर एंड पे ए को लिखा और अपर एंड पे बी को लिखा, टू शो दैट वी स्टिल नीड टू इनकॉपरेट दिस। और उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को ट्वाइस लिखना है, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा लिखा, लेकिन पहली दफ़ा अपर लिमिट और दूसरी दफ़ा लोअर लिमिट के साथ, और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। सो इट्स जस्ट लाइक 5 minus 3. If the upper limit is 5 and the lower limit is 3, it's like 5 minus 3. So in this way, we can incorporate the upper and lower limits in order to get the more precise answer, which can be numerical in nature. हम आगे चल के भी देखेंगे। सो आपने देखा कि जब मैंने उसी रिज़ल्ट को दो दफ़ा लिखा विद अ माइनस साइन, और जब पहली दफ़ा लिखने में मैंने अपर लिमिट को यूज़ किया और दूसरी दफ़ा लिखने में लोअर लिमिट को, तो मेरे पास ये सिचुएशन आई जिसे सिंप्लीफाई करके सी मेरे पास कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये एक ही फंक्शन से जनरेट हो रहे थे। इसलिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो सेम ही था। इट वाज नॉट C1 और C2, इट वाज द सेम, और इसलिए प्लस माइनस साइन जनरेट होने की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनल रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ नॉट देयर एनी मोर। और ये अहम बात है, बिकॉज जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को हल करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, तो समटाइम्स वी ओमिट दिस, हम उसे लिखते भी नहीं हैं। ये वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ये है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर इस केस में। डायग्रामेटिकली हमने इस चीज़ को देखा और हमने एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल करने की कोशिश की। हमारे पास जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल होगा जैसे ही हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ चलेंगे। ये देखिएगा, ये है हमारे पास एक फंक्शन जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और हम डेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से कर रहे हैं। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है, और ये है हमारे पास उसका पहला स्टेप जिसमें हमने इसकी इंटीग्रेशन की और हमने मेंशन कर दिया लिमिट्स को, और उसके बाद हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ विद अ डिफरेंस दैट इज़ अ नेगेटिव साइन लिखा। ये वही बात है जो आपको पिछली स्लाइड्स में क्लैरिफाई की गई थी। यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि फाइनल आंसर जो है हमारे पास 124 एक न्यूमेरिकल वे में है, और 125 इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जमा करने से या नफ़ी करने से आया है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर इज़ 124, जो कि आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर वो बात याद दहानी उसकी करनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि सी और सी कैंसल आउट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी देयर एनी मोर। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए मैं DIY रख रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं ईजीली सिंपली बाय वॉचिंग दिस सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए डिटेल में किया हुआ है। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं जिन्हें मिलाकर एक ओवरऑल फंक्शन बनाया गया जिसकी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है, और ये है हमारे पास पहला फंक्शन जो कि डेरिवेटिव ओवर फंक्शन रूल के तहत हल हुआ, और ये है जो कि पावर रूल से हल हुआ। उसके बाद हमने इनमें अब पहले इस फंक्शन को लिखा, फिर दूसरे फंक्शन को लिखा विद अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन, ये आप देख रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स को देखें और वेरीफाई करें इफ़ दीज आर ट्रू। So in this way, we have now been able to, we have become able to solve the integration which is definite in nature, and it is more helpful in the sense कि ये हमें directly numerical answers देती है जो कि हम interpret कर सकते हैं। Thank you.